नमस्कार पराक्रम जी। Good evening, ladies and gentlemen. We have our guest for today, ADG Manish Shankar Sharma sir, with us. In a short while, we'll be starting a live on Facebook. Just give me some moment while we fix our audio and technical glitches. Hello, can you hear me? Yes, पराक्रम जी, I can hear you. Yes. नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत कैसे हैं आप? Good sir, good. अर्पित जी, क्या हम शुरू कर सकते हैं अब? Yes, please. अर्पित जी का एक्चुअली ऑडियो म्यूट है। Hey, we can start. We can start. I am live from Bhopal Hawaii. Okay sir, but actually sir, Arpit ji will be share link first. Yeah. Then we can start. Just a moment. Parakam ji, I've sent you the link. Okay Arpit ji, okay. बार-बार आता है जाता है। Sir, on behalf of Global Shapers Bhopal Hub, we welcome both of you. It is a great honor and privilege for us to have you here with us. We've been planning this activity for quite some time, but somehow both the anchor and the guest for today, Mr. Sharma, we were not able to connect with them. But, better late than never, as they say. So today is the auspicious day for us to start this project. Let me be very brief about the project. Global Shapers community is all about bringing positive change in the society. And as young, energetic youth of the country, which is raring to achieve new heights in the world today, a group of youngsters from Bhopal have committed their time to bring a positive change in the society nearby. And in this series, we are trying to address issues which we all often discuss in our drawing rooms, in our offices, in the restaurants. That why doesn't the government listen to us? But the real question is, why don't we ask the government to do things for us? It is our responsibility as a citizen to suggest the best practices to the government. Also, it is our responsibility to understand how the government works. Until and unless we don't work with the government, we don't understand what the government does for us, we'll not be in a position to ask for facilities or changes. And Mahatma Gandhi rightly said that be the change you want to see in the world. So in order to see and experience a different world, I guess it is better for us to be part of the mechanism, be part of the system, and support the government, support the administration by whatever means which is possible. So on this very theme, we are organizing this dialogue. The name of the project is New Dialogue System, which aims to connect the stakeholders and the government.
the stakeholders always have a lot of questions in mind related to policing, general administration, politics, environment, and there are various issues. So what we try to do is we first try to present the government's point of view. Like in this first episode, we'll be trying to understand how Indian police works. What was the objective behind establishing Indian police services? How did it grow? What are the challenges before the Indian policing? And after the talk is over, we'll try to find out the issues in which the public, like me, Parakramji, and several others, what are the areas in which we can contribute to the police? Is there any opportunity for us to work with the police? Is there any opportunity for us to assist the police? And if we can find out those areas, I mean, that would be our first success. After that, we'll be talking to the stakeholders, the NGOs, the active people who are working with the police, retired police officers, lawyers, bureaucrats, and we'll try to create a mechanism through which young people can help and assist the police. If we are able to do that, I guess we'll be successful in our project. So over to you, Parakram ji. धन्यवाद अर्पित जी। नमस्कार, मैं पराक्रम सिंह शेखावत आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसको हम फेसबुक पर भी लाइव कर रहे हैं, तो हमारे साथ फेसबुक के भी ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस वेबिनार को शुरू करने से पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार, उन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 2011 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर क्लाउस श्वाब ने ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी की स्थापना की थी। सैंटियागो से लेकर शंघाई और लॉस एंजलिस से लेकर लंदन तक ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक युवा मंच है। दुनिया भर के प्रमुख शहरों में 100 से अधिक सक्रिय हब के साथ 30 वर्ष से कम उम्र के युवा जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, इन हब को संचालित करते हैं। और भारत के लिए तो कहा भी गया है कि भारत एक युवा देश है और इस युवा शक्ति के साथ हम बड़े से बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसी सकारात्मक सोच के साथ आज इस वेबिनार को हम शुरू कर रहे हैं और इन्हीं में से एक है भोपाल हब, जिसके सदस्य आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले आज के इस चर्चा में, आज के इस वेबिनार में हमारे जो बहुत ही खास मेहमान हैं, उनका सबसे पहले मैं परिचय आप सभी से कराना चाहता हूं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मनीष शंकर शर्मा जी। आप एडीजी हैं मध्य प्रदेश पुलिस के। मनीष शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सभी आपका। और इससे पहले कि चर्चा के क्रम को आपके साथ शुरू किया जाए, बहुत संक्षिप्त में मैं परिचय देना चाहूंगा मनीष शंकर जी का। आप मनीष शंकर शर्मा जी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई सारे पुरस्कारों से आप सम्मानित किए जा चुके हैं। वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध मध्य प्रदेश के ऊर्जावान एडीजी मनीष शंकर शर्मा को एक उम्दा रणनीतिकार भी माना जाता है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है मनीष शंकर शर्मा जी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित तो हो ही चुके हैं, लेकिन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड पब्लिक पॉलिसी डिग्री आपने ली है। और आपके नेतृत्व में जिस तरीके से पुलिस बल, जो कि खासतौर से मध्य प्रदेश का जो है वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो एक बहुत ही अनुभवी अधिकारी हैं मनीष शंकर शर्मा जी, जो कि आज के हमारे विषय सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग, क्योंकि जब से शुरुआत हुई हमारे देश में पुलिस तंत्र की, तब से लगा करके अब तक हमने देखा इन दशकों में कई सारे बदलाव भी देखने को मिले हैं। तो मनीष शंकर जी, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपका स्वागत करते हुए मैं सबसे पहला सवाल है मनीष शंकर जी की, क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं पुलिसिंग में, मैं शुरुआत से लेकर करके अब तक में, आपकी नजर में? जी धन्यवाद बहुत बहुत पराक्रम जी आपका, अर्पित जी आपका, ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी। मैं अपना जवाब आपके सवाल पर शुरू करूं, उसके पहले 2 बिंदुओं पर अपनी बात कहना चाहूंगा। और अपनी बात क्या, बल्कि 2 बिंदुओं पर आपको साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि
नंबर एक, तो जिस विषय पर आपने आज ये डायलॉग नंबर 1 रखा है, वो आज की मूलभूत आवश्यकता है, न केवल हमारे देश में परंतु पूरे विश्व में आज चर्चा चल रही है कि सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग या पुलिसिंग का क्या माहौल होना चाहिए, क्या रूप होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा विषय आपने लिया है। दूसरा इसलिए कि जो ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी आप लोग हैं, आप लोग सब युवा हैं, और मेरा ये मानना है कि ये जो विषय है, जो कि मेरे 28 वर्ष के सेवा काल में हमेशा मैंने ये माना है कि मेरे हृदय से भी बहुत नजदीक है ये विषय, और मैंने हमेशा ये माना है कि यदि कोई परिवर्तन हम पुलिस में ला सकते हैं, एक सकारात्मक छवि के रूप में और एक हमारे सकारात्मक कार्य के रूप में, तो वो केवल तभी आ सकता है जब युवाओं का हम विश्वास अर्जित कर सकें। और ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी विश्व के, भोपाल के, मध्य प्रदेश के, भारत के युवाओं को रिप्रेजेंट करती है। तो ये दो कारण मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो सवाल था पराक्रम जी, सर्टेनली बहुत से चेंजेस हम शुरुआत से अभी तक देख रहे हैं, और ये चेंजेस के यदि डीप में हम जाएं तो आप ये पाएंगे कि जो शुरुआत सबसे पहले आईपीएस की हुई थी, तो आईपीएस नाम तो बहुत बाद में आया है, सेवा का स्वरूप जो आप आज देखते हैं वो भी बहुत बाद में आया है। सबसे पहले 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उसके आसपास अंग्रेजों को ये महसूस हुआ कि एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिफॉर्म्ड पुलिस फोर्स की जरूरत है। उसके पहले तक के जो सिस्टम हमारे देश में चला आ रहा था वो कोतवाल और थानेदारों का था कि हर शहर में कोतवाल और थानेदार होते थे जो कि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम और इन सब चीजों को कंट्रोल करते थे। तो ये सिस्टम फिर शुरू हुआ, ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बिठाया, उस कमीशन ने सजेस्ट किया कि एक यूनिफॉर्म पुलिस होनी चाहिए, हालांकि वो, और उसका नाम दिया था सुपीरियर पुलिस। तो सबसे पहले सुपीरियर पुलिस के नाम से शुरू हुई थी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस कमीशन ने अपने रिकमेंडेशंस में ये लिखा था कि ये पुलिस एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसकी ड्यूटीज सिविलियन हो, लेकिन उसका गठन ऑर्गेनाइजेशनल और मिलिट्री तौर पे होना चाहिए। तो इसी के बाद में, और आपने सुना होगा कि पुलिस एक्ट ऑफ 1861, इसी के बाद में ये पुलिस एक्ट ऑफ 1861 आया, जिससे कि आज भी अधिकांश स्थानों पर भारत की पुलिस गवर्न होती है। तो धीरे धीरे जब इस तरह से डेवलपमेंट हुआ और 1861 के पुलिस एक्ट के माध्यम से पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाने लगे, तो शुरू में केवल अंग्रेजों को ही ये मौका मिलता था कि ये सुपीरियर सर्विसेज में आकर के और पुलिसिंग का काम करें। इसके बाद 1900 के आसपास इसका नाम परिवर्तित करके इंपीरियल पुलिस किया गया, आईपी, और वो चला है आजादी तक के। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद में तत्कालीन गृह मंत्री और जो प्रधानमंत्री उस समय थे सरदार पटेल ने जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विसेज किया तो आईसीएस आईएएस हो गई और आईपी को आईपीएस का नाम दिया गया। जो सबसे पहले चीफ होते थे पुलिस के अलग अलग राज्यों में, उनको इंस्पेक्टर जनरल बोला जाता था, और वो काफी वर्षों तक के आईजी ही चीफ रहे हैं। और उसके बाद में पिछले कुछ 10-12-15 वर्षों से अब डीजीपी पुलिस स्टेट फोर्सेस के और सेंट्रल फोर्सेस के चीफ होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से परिवर्तन न केवल स्ट्रक्चर में आए हैं परंतु प्रशिक्षण में, दृष्टिकोण में, मॉडर्नाइजेशन में, वेपन्स में, बहुत सी चीजों में परिवर्तन हमने देखे हैं। सर, परिवर्तन तो बहुत सारे देखे हैं, लेकिन अब भी हम देखते हैं कि आजादी के बाद से लगा करके अब तक, चाहे फिर कोई सा भी क्षेत्र हो, बहुत जरूरी है कि उसका धरातल पर सुधार कैसे हो पाया है। यदि हम पुलिस तंत्र की बात करें तो आज भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं, बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियां हैं जिसमें हमारे देश की पुलिस काम करती है। आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, कैसे आप उल्लेख कर पाएंगे कि क्या कुछ सुधार हुए हैं महत्वपूर्ण और क्या कुछ मूलभूत सुधारों की आवश्यकता अब भी है? बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण ये सवाल आपका है पराक्रम जी,
और मैंने बहुत विचार भी किया है इस विषय पर। मैंने अपने सेवा काल में प्रयास किया है कि जिन चीजों को मैं मानता हूं कि परिवर्तन जहां आवश्यक है उसका क्रियान्वयन कर सकूं एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी और उसके बाद में भी। और मूलतः मेरा ये मानना है कि कम से कम 5 ऐसे विषय हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है पुलिस को जी। आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन इन 5 विषयों पर यदि हम कंसंट्रेट कर सकें और इन 5 विषयों को प्राथमिकता के आधार पर सभी जगह पुलिस फोर्स ले सकें, पुलिस लीडरशिप, आईपीएस अफसर, स्टेट पुलिस सर्विसेज के अफसर, एसीपीज होते हैं, डीएसपीज होते हैं स्टेट्स में, ये जो पुलिस की लीडरशिप है उसको यदि इन 5 विषयों पर प्राथमिकता देने का एक मन सब हम लोग बना लें तो ये परिवर्तन निश्चित तौर पे आ सकता है। और ये 5 विषय जो मैं ये मानता हूं उनमें एक तो मुख्य है बिहेवियर, व्यवहार। ओके, करेक्ट। दूसरा है वैल्यूज, हमारे क्या आदर्श और सिद्धांत हमने रखे हैं पुलिस में। तीसरा है आउटलुक, एक पुलिसकर्मी का या एक पुलिस अधिकारी का क्या है, किस दृष्टिकोण से वो अपने काम को देखता है। चौथा है कमिटमेंट, लगनशीलता, तपस, कर्मठता, लेकिन किसके प्रति। यहां महत्वपूर्ण सबसे ये बात है कि ये कमिटमेंट इस देश के कानून के प्रति होना चाहिए, इस देश के संविधान के प्रति रखना जरूरी है। करेक्ट। और पांचवा, मैं ये मानता हूं कि टेक्नोलॉजी के यूज के बगैर किसी भी प्रकार का सार्थक परिवर्तन अब संभव नहीं है। यदि आप चाहेंगे तो इन 5 विषयों पर भी हम आगे चल के थोड़ा चर्चा विस्तृत कर सकते हैं। तो एक विषय को मैं अभी इस समय लेना चाहूंगा और वो है कमिटमेंट का। और उस विषय को इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि अमूमन आप ये देखते हैं कि पुलिस के ऊपर बार बार ये आरोप कई बार लगते हैं कि एक तरह से भेदभाव कर रहे हैं। अभी भी आप में जो देख रहे हैं तो वहां शुरुआत भेदभाव के आरोप से ही हुई है कि भाई एक पर्टिकुलर आरोप लगाया गया कि इन लोगों को पुलिस जो है वो या तो ज्यादा फोर्स यूज करती है या इनकी बात नहीं सुनती है। और हमारे यहाँ भी यदि आप देखेंगे तो मूलभूत डिफरेंसेस हो सकते हैं, परंतु जो आरोप पुलिस पे लगते हैं वो भेदभाव के लगते हैं। अमीर और गरीब का भेदभाव, ताकतवर और ताकतवर नहीं है भेदभाव जी, और इसी प्रकार के बहुत से अन्य भेदभाव जो कि अपने कार्य में जाने अनजाने, कई बार नोइंगली कई बार अननोइंगली अलग अलग जगह पर पुलिस हो जाते हैं। और इसका एक प्रमुख कारण जो मैं समझता हूं वो इनमें से एक, जो हमने 5 अभी चर्चा की, इनमें से एक कमिटमेंट उससे है, क्योंकि अधिकांश जगह ये शायद हमारे जहन में नहीं रह पाता है कि हमारा कमिटमेंट जो है वो लॉ ऑफ द लैंड के प्रति है, इस देश के कानून के प्रति है, इस देश के संविधान के प्रति है। बिल्कुल ठीक। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपके अगले सवाल से पहले कि यहाँ जो भी विचार मैं यहाँ आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूँ वो ये मान के कृपया चलें कि ये मेरे निजी विचार हैं और शासन के विचारों से इनको न जोड़ा जाए। बिल्कुल ठीक है सर। सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही, कमिटमेंट की, और उस कमिटमेंट में आपने जिक्र किया कि कैसे जो भेदभाव जो होता है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। दोनों पहलू हैं सर, उस पर भी हम बात करेंगे। और वाकई में ये इतना लंबा विषय है, हम अर्पित जी को कहेंगे कि इसकी सीरीज एक तरीके से चलनी चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है और ये बहुत संवेदनशील विषय भी है। आपने कमिटमेंट की बात की सर, क्यों व्यवहार तरीका बदल जाता है। ये कहा जाता है कि पुलिस यदि सक्रिय है तो फिर उस इलाके में अपराध हो नहीं सकता है, तो फिर चूक कहाँ रह जाती है। और जैसा कि आपने कहा कि जो डिफरेंसेस हैं भेदभाव का, कि कोई रसूखदार व्यक्ति है तो उसकी बात सुनी जाएगी, कई बार तो उसको थाने पर भी आने की जरूरत नहीं होती, फोन पर काम किए जाते हैं। लेकिन जो एक गरीब व्यक्ति है
उसको एफआईआर, सर ये माफ कीजिएगा सर, ये लेकिन ये सच्चाई है कि एफआईआर लिखाने में भी उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है सर। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो समानता की बात है, इक्वालिटी की, इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि सारी पुलिस ऐसी है, बहुत सारे जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, वो बहुत ज्यादा सक्रिय भी हैं और वो इस कुछ अपवाद हैं, लेकिन पर फिर भी जी जी सभी के साथ समानता का व्यवहार की उम्मीद हम भारत के पुलिस तंत्र से कब कर सकते हैं सर? जी बहुत आपकी जो पूरी बात है उससे मैं सहमत हूँ। और जैसा आपने कहा कि प्रत्येक पुलिसकर्मी ऐसा नहीं होता, लेकिन तो भी बहुत सी ऐसी शिकायतें आती हैं कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है और केवल उन्हीं लोगों की सुनी जा रही है जो जिनके साथ में या तो कोई रसूखदार आता है या जो अपने आप में पावरफुल है। तो मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि, और आपको जान के खुशी होगी कि मैंने हमेशा अपनी प्रत्येक पदस्थापना में अपने अधीनस्थों से, और यदि पुलिस कप्तान के रूप में रही है तो वहां सभी थाना प्रभारियों से ये कहा है, दो चीजें मैंने हमेशा कही हैं उनसे। एक ये कि आप जब भी कोई शिकायत आपके पास आती है एफआईआर करने के लिए, तो उसको सामान्य शिकायत न मान के फरियादी की तरफ से एक बार अपने आप को फरियादी के नक्शे कदम पे रख के देखिए, उसकी तरफ से सोचिए, तब आप एफआईआर कैसे करनी है, किस प्रकार से उसमें त्वरित कार्रवाई करनी है, ये सारी चीजें आपके जहन में आ जाएंगी। और दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि हमारा सबका उद्देश्य, और हमेशा से उनसे कहता भी रहा हूं कि हमारा सबका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि जो व्यक्ति पुलिस के पास आने में डरता है, देखिए आज स्थिति कई जगह ये है कि जिनको हमसे डरना चाहिए, जिनको पुलिस से डरना चाहिए, वो नहीं डरते, और जिनको नहीं डरना चाहिए पुलिस से वो डरते। तो इसको परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है कि विश्वास अर्जित किया जाए, जिसकी बात मैंने शुरुआत में करी थी। आपने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा होने के बहुत से कारण हैं कि इस प्रकार की स्थिति क्यों कभी कभी कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा निर्मित हो जाती है। और उसके मूल कारणों में यदि अपन जाएं तो जो कमिटमेंट की हमने बात करी थी उसी को आगे ले जाते हुए, कमिटमेंट फॉर द लॉ ऑफ द लैंड का मतलब है, या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो कानून कहे वह करो। परंतु हो क्या जाता है, और ये हर स्तर पे होता है, माफ कीजिएगा कुछ चीजें मैं आपके सामने ऐसी रखूंगा जो शायद हमारे कुछ साथियों को पसंद ना आए, परंतु है यथार्थ। क्या होता है कि कई बार काम करते करते हम ये भूल के कि लॉ ऑफ द लैंड का हमारा समर्थन करने का और उसके अनुसार काम करने का कार्य है, हम करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द डे है जी, इसके अनुसार हम काम करने लगते हैं। आप पाइएगा, और इसके अनेकों उदाहरण आपको हर राज्य में, केंद्र में हर समय मिल जाएंगे। आप पाइएगा कि सत्ता बदलती है तो देश के प्रमुख संगठन पुलिस के एक ही केस में अपनी पूरी भाषा बदल लेते हैं जी। पहले आरोपी कोई और होता है, सत्ता बदली आरोपी कोई और हो जाता है। करेक्ट। और राज्यों में भी ऐसा ही है, जिस आरोपी के ऊपर दर्जनों केस होते हैं, जांचें चल रही होती हैं, यदि सत्ता परिवर्तन हुई और वो प्रिय अधिकारी है किसी का, तो वो सारे केस वापस ले लेते हैं। पुलिस वाले खुद सीनियर अफसर लिख देते हैं कि कोई केस नहीं बनता है, वापस लिए जाते हैं और वो अधिकारी को जो चाहे पोस्टिंग दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे प्रकरणों से, ऐसे उदाहरणों से इस धारणा को बल मिलता है कि लॉ ऑफ द लैंड के प्रति समर्पित रहने के बजाय पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति समर्पित रहने से अच्छे असाइनमेंट मिलते हैं। आपने सुधार की बात करी, सुधार सबसे पहले तब हो सकता है जब मेरिट और कॉम्पिटेंस को एक पैमाना बनाया जाए पोस्टिंग्स के लिए, चाहे वो पोस्ट थाना प्रभारी की हो, चाहे वो पोस्टिंग डीएसपी की हो, चाहे वो किसी अन्य की पोस्टिंग। अन्य सुधार हो सकता है प्रशिक्षण से। प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, बार बार ये बताया जाना जरूरी है। नई तकनीक का उपयोग कैसे करें ये बताना जरूरी है। और सुधार हो सकता है अच्छे से अच्छे युवाओं को लाने से। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं अपने व्यापी अनुभव से।
अमेरिका में आज आप देख रहे हैं ये सब प्रोटेस्ट हो रही हैं, लेकिन मैंने वहां का एक दूसरा स्वरूप भी देखा है, और दूसरा स्वरूप है कि वहां की हर टॉप यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, येल, सभी जगह जो प्रमुख अमेरिकी पुलिस संगठन है या गुप्तचर संगठन है या सैन्य संगठन है, एनएसए है, यूएस साइबर कमांड है, सीआईए है, इनके नंबर 1 के अधिकारी, डायरेक्टर्स या चीफ्स इन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और देश के बेस्ट युवा जो होते हैं उनसे आह्वान करते हैं कि आप आइए, इस पुलिस संगठन को ज्वाइन करिए, या इस सैन्य संगठन को ज्वाइन करिए, या इस गुप्तचर संगठन को ज्वाइन करिए और देश की सेवा करिए। हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि हम अपने यहाँ के उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में जाएं और जो सर्वश्रेष्ठ युवा है उसको प्राइवेट सेक्टर या अन्य जगह जाने के साथ साथ सरकार में आने के लिए भी मोटिवेट करें। तो अच्छे लोग आएंगे तो सुधार होगा, परिवर्तन भी होगा। सर, पुलिस तंत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप, मतलब खुले रूप में यदि कहा जाए तो वाकई में ये सभी लोग जानते हैं, और इसके पहले जी आप के सवाल जवाब में इस पर आपने भी प्रकाश डाला, मेरी भी ये इच्छा थी कि इस पर बात की। इससे पहले क्या आवश्यकता हो क्या, क्योंकि देखिए अगर सत्ता, जैसे आपने कहा, सत्ता बदली और नियंत्रण और फिर मायने बदल जाते हैं, तो उस सुधार के लिए क्या पुलिस तंत्र को सुधारने से पहले जरूरी है कि सत्ता के स्तर पर सुधार की उम्मीद की जाए राजनेताओं से? देखिए, ये सवाल के बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और इसलिए भी ये सवाल, मेरे ख्याल से ये सवाल क्रूक्स ऑफ द इशू है। क्रूक्स ऑफ द इशू इसलिए है कि आप जिस भी पुलिस वाले से, पुलिसकर्मी से, पुलिस अधिकारी से मिलते हैं, जिसकी आप छवि देखते हैं या आप जिसके कार्य को देखते हैं या जिसके कार्य को सुनते हैं और जिससे आप अपना मानस बनाते हैं कि वो अच्छा कार्य कर रहा है या बुरा, वो कहाँ से आ रहा है? वो इस समाज से आ रहा है। और ये मानिए कि 21 वर्ष का होते होते उसमें इसी समाज के आदर्श, सिद्धांत और मूल्य हैं। अब 21 वर्ष होने के बाद कोई बैंक में चला गया, कोई पुलिस में आ गया, कोई राजनीति में चला गया, कोई अन्य जगह चला गया, तो जो पुलिस में आया है वो आदर्श, सिद्धांत और मूल्य तो वही कैरी कर रहा है जो समाज के हैं। तो हम यदि केवल ये एक्सपेक्ट करें कि केवल पुलिस विभाग में सुधार होगा और बाकी जगह सुधार न हो या उसकी अपेक्षा न की जाए, तो ये शायद संभव नहीं है, क्योंकि वो पुलिसकर्मी, वो पुलिस अधिकारी भी उसी समाज का हिस्सा है। और आपने ये कहावत सुनी होगी, अ सोसाइटी गेट्स द पुलिस इट डिजर्व्स। तो वो बेसिकली बात यही है कि शुरुआत हर स्टेक होल्डर में होनी है। और जैसा आपने कहा, राजनीतिज्ञ ही अलोन, राजनीति अलोन ही सेक्टर नहीं है। मैं ये समझता हूं कि हर स्टेक होल्डर, चाहे वो पुलिस विभाग स्वयं हो, चाहे अन्य प्रशासकीय विभाग हो, चाहे मीडिया हो, चाहे समाज के अन्य वर्ग हो, सभी जगह एक दृष्टिकोण ये जरूरी है सुरक्षा के प्रति और पुलिस के प्रति और अपने कार्य के प्रति, जिसमें शायद बदलाव की जरूरी जो आहर्ताएं हैं वो सब जगह हैं। 19-20 का अंतर हो सकता है, परंतु जरूरी है। और इसकी शुरुआत हमारे देश में, इसके प्रयास बहुत हुए हैं पराक्रम जी। आप जानना चाहेंगे कि सबसे पहले एक पुलिस कमीशन सेटअप हुआ था 1977 में जी। और उसका कार्य यही था, वो सेटअप ही इसलिए हुआ था कि पुलिस में बहुत सुधार की गुंजाइश है, किस प्रकार से पुलिस को ऐसा बनाया जाए कि वो निष्पक्षता से अपना कार्य कर सके। और 1977 में ये कमीशन सेटअप हुआ। 1980 में कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन सरकार को दिए। अब गिनिए, 1980 से लेके और वर्ष निकलते गए, सत्ताएं बदलती गई, सरकार नई आती गई, परंतु किसी भी सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया कि जो कमीशन ने रिकमेंड किया है पुलिस में सुधार के लिए आवश्यक बदलाव करने को, उसको क्रियान्वित किया जाए। उसके अपने कारण हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि पुलिस जिस प्रकार से है वो अभी अच्छी, सूटेबल है, और उसमें यदि बदलाव कर देंगे, निष्पक्ष हो जाएगी, तो शायद कहीं समस्या आने लग जाए। तो किसी ने उसमें इम्प्लीमेंटेशन की, उस रिपोर्ट की नहीं सोची।
अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक पुलिस अधिकारी जो कि डीजीपी रहे हैं एक आध दो स्टेट्स के और पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के, उन पुलिस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि ऐसी ऐसी एक रिपोर्ट आई थी पुलिस सुधार के लिए, कोई भी राज्य कोई भी केंद्र उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस दे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये याचिका 1996 में लगी और 2004 में 8 वर्ष उसमें सुनवाई चली और 2004 में भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि हाँ, ये जो पुलिस कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं ये अत्यावश्यक हैं इस देश में लागू किए जाने के लिए, अतः तत्काल प्रभाव से सभी राज्य इन निर्देशों का पालन करें। अब ये निर्देश दिए गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2004 में। ठीक है। 2004 से जब वर्ष निकलने लगे और सुप्रीम कोर्ट ने देखा और वो याचिकाकर्ता पुनः पहुंचे कि देखिए आपने निर्देश दे दिए हैं और कोई भी राज्य पालन नहीं कर रहे, तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिसर्स तय किए कि फला राज्य से प्रमुख सचिव, डीजीपी और फला अधिकारी हर 3 महीने में या हर 6 महीने में हमको ये रिपोर्ट देंगे कि कितने रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हुए, कितने नहीं हुए और क्यों नहीं हुए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत प्रयास किया। आज भी आप ये मान के चलिए कि वो जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में, कुछ राज्यों में बिल्कुल लागू नहीं हुए हैं, कुछ राज्यों में थोड़े थोड़े लागू हुए हैं, परंतु जहां लागू भी हुए हैं वहां कागज पे लागू कर दिए गए हैं, परंतु तरीके ये निकाल लिए गए हैं कि किस प्रकार से जो हम चाहें वो कर सकें, परंतु जो मूल भावना उस रिपोर्ट की है या उन निर्देशों की है उसका पालन न हो पाए। और ये सज्जन जिनकी मैंने आपको ये अभी पूरा वर्णन बताया, जिन्होंने याचिका लगाई थी, पुराने डीजीपी महोदय, उनसे एक बार हमारी मुलाकात हुई थी और उनको यहाँ मध्य प्रदेश में आमंत्रित किया था हमने कि आकर आप और अधिकारियों को संबोधित करें। तो अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने ये कहा कि ये जो याचिका उन्होंने 1996 में लगाई और 2004 में निर्णय हुआ और उसके बाद से जो चल रही है उसमें पुलिस में सुधार न हो, इसका सबसे ज्यादा विरोध पुलिस के ही डीजीपीज ने किया है। तो और उन्होंने ये बात सार्वजनिक रूप से कही थी। दुर्भाग्यपूर्ण है सर, लेकिन ऐसा क्यों? इसकी वजह क्या रही? देखिए, इसकी बहुत सी वजह हैं। शुरू में भी जैसे मैंने आपको बताया था, असाइनमेंट्स जब तक के मेरिट और कॉम्पिटेंस के आधार पे नहीं होंगे जी, तो क्या होता है, असाइनमेंट्स फिर पसंद किसी और चीज के आधार पे बनती है। और जब पसंद के आधार पे हर चीज हो रही तो मेरिट, कॉम्पिटेंस या प्रोफेशनलिज्म फिर आवश्यक नहीं रह जाती। और वो आवश्यक नहीं रह जाती है तो हम में से कुछ लोग फिर दूसरे तरीके ढूंढते हैं अच्छे असाइनमेंट्स पाने के। और वो दूसरे तरीकों में ये है, बहुत सी चीजें होती हैं, ओबलाइज करिए, बाकी चीजें करिए, तो इससे फिर एक सिस्टम गड़बड़ होने लगता है। और इसीलिए यह आवश्यकता है कि पुलिस रिफॉर्म्स तुरंत इस देश में आए। लेकिन सबसे जरूरी चीज वो ये है कि एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ये मानने के लिए हम में ओपननेस होनी चाहिए कि रिफॉर्म्स जरूरी है और शायद अभी उसमें और प्रयास की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है शर्मा साहब, लेकिन एक चीज है यहाँ पर कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और संसद, इन 4 स्तंभों पर भारत का लोकतंत्र टिका है, जो कहता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन वास्तविकता में धरातल पर जो स्थिति रहती है वो कुछ और ही रहती है। ऐसे में जब कानून व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर जब जो नीति सम्मत हो, जो नियमों के हिसाब से हो, उस आधार पर जब देश को चलना होता है, ऐसे में फिर आपकी नजर में चूक कहाँ रह जाती है? देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पुलिस तंत्र की बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं तो कुछ खामियां भी हैं, उन दोनों पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन एक बात का बड़ा दुख होता है सर, मैं जर्नलिस्ट हूं, जब हम खबरें पढ़ते हैं न्यूज चैनल पर, टीवी पर, तो कई बार ऐसा देखते हैं कि किसी स्थान पर, फलाने जगह पर बलात्कार हुआ और पीड़िता के माता पिता थाने गए अपराध दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस वाले ये कहकर टाल देते कि जी हमारा मामला नहीं है।
और सीधा सीधा जो ज्वलंत मुद्दा मेरे दिमाग में आ रहा है वो हैदराबाद की घटना का है। हैदराबाद की घटना में पीड़िता के माता पिता 4 पुलिस स्टेशन भटके हैं सर। सर जब ये रवैया होता है तो ये बड़ा दुखदाई होता है सर। फिर हम चाहे बात करें एसिड अटैक के विक्टिम्स की, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं फिर यहाँ पर कहना चाहूंगा कि सभी पुलिस वाले और पूरी की पूरी पुलिस ऐसी है ऐसा नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग हैं उनकी वजह से जो हमारे देश का जो निचला तबका है या जो एक आम नागरिक है वो जब परेशान होता है तो ऐसे में आपको लगता है कि एक उम्मीद जो सबसे ज्यादा मदद का हाथ होना चाहिए वो पुलिस वालों का बढ़ चढ़ के होना चाहिए, जिससे अपराध भी रुके और लोगों में भी आत्मविश्वास बढ़े, उनका भी डर दूर हो। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपने जो उदाहरण दिया है बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है हैदराबाद वाला। एक उदाहरण और है उसके कई साल पहले वाला, और वो दिल्ली का निर्भया वाला आपको याद होगा। और इस प्रकार के, और ये अपवाद हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि अपवाद हैं, अधिकांश पुलिस ऐसी नहीं है, परंतु ये अपवाद ऐसे नहीं है कि बहुत इक्का दुक्का होते हो, ये निरंतर हो रहे हैं, हर राज्य में होते हैं, और इनको तत्काल रोकना आवश्यक है, इसमें कोई दो मत नहीं। परंतु होते क्यों हैं इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं और क्या किया जा सकता है इसके लिए। तो होते इसलिए हैं कि आप ये देखिए कि जो अकाउंटेबिलिटी एक होनी चाहिए प्रत्येक पुलिसकर्मी में, प्रत्येक एक अपने कार्य के प्रति समर्पण के साथ साथ यदि आपने वो कार्य जैसा आवश्यक है वैसा नहीं किया तो कार्यवाही आपके खिलाफ होगी। अकाउंटेबिलिटी ये नहीं है, तो और किसी स्तर पे नहीं है ये। अधिकांश जगह बहुत से अधिकारी हैं जो इस चीज का पालन करते हैं, पर अफसोस है, और मैंने भी अपने जीवन काल में, अपने सेवा काल में ये देखा है कि यदि आप प्रयास कर रहे हैं कि जिसने गलती की है उसको टास्क पे लें, उसके सवाल जवाब करें, तो आप ही के ऊपर के जो अधिकारी हैं वो उसको बचाने में लग जाते हैं। जी बिल्कुल। तो होता यह है कि जो गलती करने वाला है, चाहे वो एफआईआर न लिखने में गलती कर रहा है, चाहे वो टाल मटोल कर रहा है दूसरे थाने में बोलने के लिए, या चाहे वो निर्भया के केस में आपको एक फोटो याद होगी, इमेज कॉन्शियसनेस की भी मैं बात करता हूं कि पुलिस में इमेज कॉन्शियसनेस नहीं, अधिकारियों में व्यक्तिगत रूप से है इमेज कॉन्शियसनेस। तो आप पाएंगे कि बहुत से अधिकारी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी छवि भी उनकी है, परंतु पुलिस संगठन की इमेज कॉन्शियसनेस नहीं है। और इसका उदाहरण मैं निर्भया से जोड़ के इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको एक उस समय की, और आप जर्नलिस्ट हैं, आपको शायद याद रहा हो या आपने देखा हो वो चित्र जिसमें एक लड़की है, वो अपनी वृद्ध माँ को बचाने की कोशिश कर रही है, इस प्रकार से पूरा उसको घेर। जी देखा है, बिल्कुल याद आ गया सर। चारों तरफ से पुलिस के अधिकारी, कुछ सब इंस्पेक्टर्स हैं, कुछ और हैं, उसको लाठी से और अन्य चीजों से मार रहे हैं। अब देखिए, सीधा सीधा कानून बड़ा स्पष्ट है कि कोई यदि कानून का उल्लंघन कर रहा है तो आप उसको बता सकते हैं, पहले मना कर सकते हैं, नहीं माने तो गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन और यदि कोई वायलेंस कर रहा है तो उसका अलग तरीका हो सकता है रिटेलिएट करने का। लेकिन उस चित्र को देख के ये लगता है कि भाई ये वृद्ध औरत किस प्रकार से कोई वायलेंस कर रही होगी जिससे उसको लाठियों की जरूरत है, ये समझ के परे है। और इस एक चित्र से 100 अच्छे पुलिस कर्मियों के काम नलिफाई हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये बहुत कहता हूं बार बार कि इमेज कॉन्शियसनेस आवश्यक है और अकाउंटेबिलिटी आवश्यक है। और चूंकि ये दोनों चीजें नहीं हैं, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। अत्यावश्यक ये भी है कि हमारी लीडरशिप, हम लोग आईपीएस अधिकारी, देखिए क्या होता है कि नीचे वाले तो यही देख के चलते हैं कि ऊपर वाले क्या कर रहे हैं। यदि हम लोग, मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण आपको देना चाहता हूं, फिर से अपना ही, कि मेरी एक, जैसे हम लोग की सबकी होती है कुछ ना कुछ व्यायाम करने की, तो मैं अमूमन दिनचर्या के बाद में शाम को ये प्रयास रहता है कि एक 3-4 किलोमीटर का अच्छा जॉग और रन और वॉक टाइप का एक मिक्सचर हो जाए। और जब ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा था तो उस समय पार्क बंद थे, कई जगह निकलना अलाउड नहीं था, जहां निकलना अलाउड था तो वहां पे सड़कों पे जाके और थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया। एक ऐसा अवसर आया जब एक बेंच
रखी हुई थी और उस पर मैंने अपना खत्म किया था और वहां जाके मैं बैठा था। थोड़ी देर में एक सब इंस्पेक्टर वहां आके बैठे पुलिस के, और उनसे ऐसी बातचीत चलने लगी। उन्हें नहीं मालूम था हम कौन है, मुझे भी नहीं मालूम था किस थाने के क्या है, लेकिन वर्दी पहने हुए थे तो इतना जरूर मुझे मालूम था कि सब इंस्पेक्टर। तो बातचीत चलने लगी, उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं बताई। फिर मैंने कहा यही जो आपने अभी विषय उठाए, चिंतन में भी करता रहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर पाते कि ये FIR लिखने में परेशानी है और जो आदमी आ रहा है उसकी हम बात नहीं सुनते हैं। अरे बोले साहब आप क्या बात कर रहे हो, सुनते हैं सब, लेकिन हम सुनते हैं अपने लोकल पार्षद की। हमका मतलब, तो बोले देखिए हमको रहना है इस थाने में, और यदि हम उसके कहे अनुसार नहीं करेंगे तो ना तो हमारा DSP ना हमारा SP, हमें कोई, हमारी सुनने वाला कोई नहीं। तो इससे एक चीज मुझे और समझ में आई और जो मैंने महसूस भी किया है कि एक ह्यूज कम्युनिकेशन गैप हो रहा है सीनियर लीडरशिप पुलिस की और जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनमें, IPS अधिकारी और SPS अधिकारी और जो कांस्टेबलरी या सब इंस्पेक्टर तक के, इनमें एक अच्छे कम्युनिकेशन का अभाव है और विश्वास की भी कमी है। तो जब मैं विश्वास की बात करता हूं, वो केवल यही नहीं है कि जनता और पुलिस के बीच का विश्वास हमारे सबऑर्डिनेट को भी होना चाहिए कि यदि वो कोई सही काम करता है तो उसके सीनियर्स उसको बचाएंगे। यदि वह FIR लिखता है और FIR लिखने से कोई ताकतवर प्रभावशाली व्यक्ति नाराज होता है तो इसका ट्रांसफर नहीं होने देंगे SP। ये विश्वास उसको होना चाहिए और उसको ये भय भी होना चाहिए कि यदि वो नहीं सही कार्य करता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। ये दोनों चीजें नहीं है और ये मूल कारण। बिल्कुल ठीक है शर्मा सर, लेकिन एक सवाल ये भी है, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इन सब के बीच में हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में, आपका तो अनुभव भी रहा है सैंटियागो का और दूसरे देशों का, शहरों का। फॉरेन कंट्रीज में जब पुलिस की गाड़ी या पुलिसकर्मी किसी के घर पर जाते हैं या किसी के घर के सामने खड़े होते हैं तो एक होप की उम्मीद उनको लगती है ना, एक इनका इस तरीके का हेल्प का साइन होता है और वो उनको देख करके एक आत्मविश्वास से भर जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे देश में यदि किसी स्ट्रीट में या किसी गली में पुलिस की गाड़ी घूम जाती है या किसी के घर के आगे पुलिस की गाड़ी रुक जाती है तो एक तरीके से दहशत का माहौल लगता है और लोगों को भय लगता है कि ये हमारे घर में क्यों है। तो आपने भी बताया हालांकि कि बहुत कुछ सुधार हुए हैं, बहुत कुछ सुधार होने हैं, प्रशिक्षण की भी जरूरत है, लेकिन ये विश्वास हम जनता के मन में कैसे जगा पाएंगे कि जो पुलिस है हमारी, वो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए है, वो हमारी दुश्मन नहीं, हमारी दोस्त है। देखिए ये विश्वास उन्हीं चीजों से आ सकता है जिनकी अपन ने अभी तक के चर्चा की है, जो बिंदु मैंने गिनाए, कमिटमेंट से लेके और निष्पक्षता तक के। वो विश्वास हासिल पुलिस तभी कर सकती है जब आम आदमी को ये लगे कि निष्पक्षता से कार्य होगा। और निष्पक्षता से कार्य कब होगा, ये इसके लिए फिर हम स्टोरी यदि जाएंगे तो वही असाइनमेंट्स इस आधार पे हों कि आपकी कार्य कुशलता पैमाना बने, बजाय इसके कि आप किसके नजदीक हैं। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं समझता हूं शायद हमारे यहाँ अभी कमी है और जो यदि अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए तो आपके इस मूल सवाल का जवाब दे सकती है, वो है पुलिस में सॉफ्ट स्किल्स का ना होना। सॉफ्ट स्किल्स आजकल देखिए कितना महत्वपूर्ण माने जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, अन्य जगह, विदेशों में आप बात करते हैं, सभी जगह, और वहां भी सॉफ्ट स्किल्स पुलिस में बहुत हैं। आप अमेरिका में भी देखेंगे पुलिस वाले यदि आपको रोकेंगे, लाइसेंस देखना चाहेंगे, मे आई सी योर लाइसेंस सर, अच्छे तरीके से अमूमन वो बात करेंगे। तो सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण जो है वो देना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ बहुत सी पुलिस की जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने ग्रेजुअली ये शुरू किया है, ट्रेनर्स आ रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स के मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इन प्रशिक्षण संस्थानों में, और धीरे धीरे पुलिस की लीडरशिप का ये प्रयास है कि अच्छा प्रशिक्षण दिया जा करके जो कटिंग एज की पुलिस है, कटिंग एज मतलब थाने की पुलिस, जिससे आम आदमी का आमना सामना संबंध होता है, उसको इन सॉफ्ट स्किल्स से सुसज्जित किया जा सके।
तो ये प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षों में शुरू हुई है। इसमें और जोर देने की आवश्यकता है, इसको और प्रगाढ़ता से करने की आवश्यकता है, इसको और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ इसमें अभी एक चीज शायद नहीं जोड़ी जा रही है, और वो है एम्पैथी की। एम्पैथी एक शब्द है जिस सहानुभूति यदि कह लें हिंदी में, उसका जो सबसे नजदीकी, तो एम्पैथी यदि हम सिखा सकें साथ में और इनग्रेन कर सकें कि भाई आप ये महसूस करिए कि जो आपके पास रिपोर्ट लिखाने आ रहा है उसको कितना सशंकित है। वो आप महसूस करिए जिसके घर के सामने आप जाके खड़े हो रहे हैं, वो केवल आपकी जो छवि है उसके कारण कितना सशंकित है। ये महसूस भर करने से व्यवहार में परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। तो ये 2-3-4 चीजें पहले जो अपन ने चर्चा करी, उसके अतिरिक्त यदि प्रशिक्षण जोड़ दी जाए तो बहुत अंतर आ सकता है। ठीक है शर्मा सर, बहुत संक्षेप में अब कुछ सवालों के जवाब भी मैं चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा था, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ खामियां हैं तो बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, लेकिन इन सबके बीच में हम ये भी तो देखें कि किस माहौल में, किस परिस्थिति में, कितने तनाव में, कितने मूलभूत सुविधाओं में, किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी पुलिस काम करती है। बहुत सारे पुलिस थाने ऐसे मिल जाएंगे जहां पर बैठने के लिए प्रॉपर चेयर्स नहीं मिलेंगी, कहीं पर फोटोकॉपी मशीन नहीं होगी, उनको पुलिस कर्मियों को छुट्टी का उनका कोई दिन नहीं होता, पुलिस कर्मियों का कोई त्योहार नहीं होता, उनके लिए कोई होली, कोई दिवाली, कुछ नहीं होता। अपने घर परिवार से सामाजिक रूप से भी वो बहुत ज्यादा कट जाते हैं। ऐसे में जो मेंटल प्रेशर है और जो मेंटल लेवल है उसको भी सुधारना जरूरी होगा। तो इसमें क्या कुछ सुधार हो सकता है? ये भी बहुत गंभीर और संवेदनशील मसला है सर। एब्सोल्युटली बिल्कुल। और बहुत सी समस्याओं की जड़ भी यही है जी। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं पुलिसकर्मियों की, उनको हम पूरा नहीं कर सकते, तो ये उनसे अपेक्षा करना बेईमानी हो जाता है कि वो अपना सर्वोच्च सद्व्यवहार 24 घंटे रखे रहेंगे। और इसके लिए बहुत से प्रयास हुए हैं, और पिछले मैं समझता हूं 15 वर्ष में केंद्र सरकार ने भी बहुत सा पैसा दिया है और राज्य सरकारों ने भी सभी जगह उस पैसे का भी उपयोग किया है। अपना भी पैसा राज्य सरकारों का पुलिस के मॉडर्नाइजेशन में और अपग्रेडेशन में लगाया है, और इसका ये फल हुआ है कि बहुत से, देखिए कायदा तो ये है कि प्रत्येक पुलिसकर्मी को आवास की सुविधा होनी चाहिए। और यदि आवास की सुविधा नहीं दी जा सकती है तो जो भत्ता दिया जाता है वो इतना होना चाहिए कि वो निश्चित होकर के और कार्य कर सके। लेकिन भत्ते की रेट्स आप देखेंगे तो पुराने जमाने में तो अभी 5 साल 8 साल पहले तक बहुत ही कम होती थी, धीरे धीरे अभी भी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं है। तो इनमें भी और बढ़ोतरी की गुंजाइश है, जो कि होना चाहिए। आवास और सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए। जो अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन के तहत फंड्स पुलिस को प्राप्त हो रहे हैं और बहुत मिल रहे हैं कई जगह, उसका उपयोग, उसका आप देखते होंगे कि पुलिस के वाहन बहुत हो गए, थाने नए बन रहे हैं। एक जमाना होता था जब थानों में संख्या बिल्कुल नहीं होती थी। मुझे याद है जब हम खुद एसपी थे तो 4 एक सब इंस्पेक्टर, एक हवलदार और 4 सिपाही, इस स्ट्रेंथ के भी थाने होते थे, और 80 गांव 82 गांव। तो लेकिन अब जरूर मैं मानता हूं मध्य प्रदेश में भी और बाकी जगह भी अब ऐसी स्थिति नहीं रह गई है। पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या के मान से पुलिस जो होनी चाहिए उस दिशा में कार्य बहुत चला है। पुलिसकर्मियों की बढ़ोतरी बहुत हुई है, उनको सुख सुविधाएं, संसाधन दिए जाने चाहिए, उस दिशा में भी कार्रवाई बहुत हुई है और ये आगे भी जारी रहेगी। और ये आवश्यक इसलिए भी है कि पुलिस न केवल मजबूत हो सके, परंतु जो मनोबल जरूरी है अच्छा कार्य करने के लिए पुलिस कर्मियों का, उसके पीछे भी इन सभी मूलभूत सुविधाओं का होना आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही सर आपने, लेकिन फिर भी यदि हम बात करें सुधार की, वो सुधार तो अपने स्तर पर अपने तरीके से होगा, लेकिन बहुत सारे पुलिस कर्मियों का मनोबल इस तरीके से भी जुड़ता है कि मॉनेटरी
मोटिवेशन उनको सरकार की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से कितना मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं कि कहीं कोई गलत तरीके से पैसे लेते हुए सामने आया, तो इस तरीके की यदि स्थिति ही ना बने, मतलब हर तरीके से उनको समय पर छुट्टी दी जाए, रोस्टर प्रणाली क्या हो सकती है इसमें, और जो अच्छे अधिकारी हैं, जो अच्छे पुलिसकर्मी हैं, उनका सही समय पर उनका प्रमोशन भी हो। हम देखते हैं बहुत सारों की कुंठा और बहुत सारों की पीड़ा इसी बात को लेकर होती है कि ईमानदारी से वो अपनी सर्विस करते हैं, लेकिन बावजूद इसके आगे वो बढ़ जाते हैं जिनका अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल होता हो, या फिर वो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हो। इस तरीके से इसमें जो प्रतिभा होती है, इसमें जो ईमानदारी, मेहनत और जो त्याग वाली जो पुलिसकर्मी, जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ज्यादा मानसिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं। जी जी, मुझे लगता है मुझसे बेहतर आप समझ पाएंगे इस बात को। आपके निश्चित तौर पे आपके सवालों को और ऑब्जर्वेशंस को देख के लगता है कि आप हम ही में से एक हैं, इतना आप जानते हैं विभाग के बारे में। तो आपका जो कहना है बिल्कुल सही है कि जो मनोबल है वो अपनी जगह इतना महत्वपूर्ण होता है, और मनोबल सर्टेनली बहुत सी चीजों से जुड़ा होता है, लेकिन प्रमोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे जुड़ा होता है। और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैं स्वीकार करता हूं कि जो हम लोग हैं, हमारी लीडरशिप है, हम लोग आईपीएस अक्रॉस द कंट्री है, वो ऐसे तरीके नहीं ढूंढ पाई है कि कांस्टेबलरी का भी प्रमोशन या सब इंस्पेक्टर्स का भी प्रमोशन उसी निरंतरता से हो जैसा कि हम लोगों का स्वयं का होता है। इतने साल हुए तो ये प्रमोशन, उतने साल हुए तो वो प्रमोशन। यदि ऐसा ही सिस्टम हम बना सकें कांस्टेबल्स के लिए भी और सब इंस्पेक्टर्स के लिए भी, तो निश्चित तौर पे ये उनके मनोबल को बहुत अच्छा बढ़ावा देगा। और मुझे याद है एक ऐसा पीरियड जब, और मैं आपको समझिए 2003-2004 की बात है, मुझे सेवा काल में 12-14 साल हो गए और 2-3 प्रमोशन मेरे हो गए थे, 3 प्रमोशन तब तक के हो गए थे। ओके। परंतु हमारे साथ में जो हमारे थाना प्रभारी थे वो 1982 में भर्ती हुए थे और 2002 में भी सब इंस्पेक्टर के सब इंस्पेक्टर ही थे, 20 साल में। जी। तो यदि हम इतने भी सक्षम नहीं हैं कि 20 साल में हमारे सबसे प्रमुख अंग, थाना प्रभारी पुलिस का सबसे प्रमुख अंग होता है, और उसको हम एक भी प्रमोशन ना दे पाए 20 साल में, तो उसका वाकई मोटिवेशन क्या रह जाएगा। तो ये मैंने इसीलिए स्वीकार किया था कि ये कुछ हमारी कमजोरी रह गई है कि हम अपने प्रमोशंस बिल्कुल नियमित समय पे देख पाए हैं, परंतु इन लोगों के लिए उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे इसमें बहुत स्कोप है और आगे कार्यवाही की जानी चाहिए, इसमें दो मत नहीं। बिल्कुल ठीक है। शर्मा साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप यूएन पीस कीपिंग में भी भारत की तरफ से आप नेतृत्व वहां पर कर चुके हैं, अपनी सेवाएं वहां पर दे चुके हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में यूएन पीस कीपिंग को आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है, और आपकी नजर में क्या कुछ और सुधार करने की जरूरत हो सकती है, या भारत का जो योगदान है वो उसको कैसे देखेंगे? देखिए, ये जो विषय है यूएन पीस कीपिंग, इस पे हम 2 घंटे अलग से चर्चा कर सकते हैं, और आपने एक ही सवाल में जो जो अलग अलग पहलू टच किए हैं, इनमें भी बहुत समय लग सकता है। संक्षिप्त में यदि इस पर अपने विचार रखूं तो देखिए, यूएन जो संस्था है वो 1945 में इसका गठन हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद में। और उस गठन के समय जो उस समय की वैश्विक परिदृश्य था, उसके हिसाब से उसके सदस्य हुए, परमानेंट मेंबर्स भी उसके उस हिसाब से बने, अन्य भी उसकी मेंबरशिप उसी हिसाब से हुई। और आज भी जो आप सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देखते हैं तो वो उस समय की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं जी। 1945 की। अब समय परिवर्तन हो गया है काफी, और ये मांग भी विश्व के कई कोनों से उठी है, भारत से भी उठी है कि यूएन पीस कीपिंग में और यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर में भी अपने आप परिवर्तन आना चाहिए। यूएन पीस कीपिंग महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये कार्य ऐसी जगह किया जाता है जहां गृह युद्ध हो रहा, और गृह युद्ध के दौरान
देश, आधा देश एक तरफ है, आधा देश एक तरफ है, और बहुत हिंसा हो रही है, और हिंसा को दूर कैसे किया जाए, उसे रोका कैसे किया जाए, इसका जवाब उस देश में उस समय उसके पास नहीं होता है। तब फिर यूएन की शांति सेना वहां जाती है और उसका प्रयास करती है। भारत का जो रिकॉर्ड रहा है यूएन पीस कीपिंग में, बहुत ही उत्कृष्ट और उच्च स्तर का रहा है। हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत सेवाएं उच्च दी हैं, पुलिस में भी और मिलिट्री में भी, दोनों तरह की यूएन पीस कीपिंग में बहुत उच्च सेवाएं दी हैं, और ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनसे कि यूएन में भी आज भी जो भारतीय पुलिस है या जो भारतीय सेनाएं हैं, उनका बड़ा मान सम्मान एक पीस कीपर के रूप में है, न केवल यूएन स्ट्रक्चर में परंतु उन देशों में भी जहां हमारे पीस कीपर्स गए हैं और उन्होंने कार्य किया है। भारतीय पुलिस की तुलना से यूएन पुलिस का काम थोड़ा सा इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि वहां आप एक इंटरनेशनल परिदृश्य काम कर रहे हैं। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डिफरेंट होते हैं, रूल्स ऑफ यूज ऑफ फोर्स नहीं होते हैं, अलग अलग चीजें आपके कार्य को निर्धारित करती हैं, और आपको वहां समन्वय करना है 12 या 14 या 16 देशों के अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ। यहाँ आप समन्वय करते हैं अपने ही देश के अन्य अधिकारियों के साथ में। तो कुछ किसी तरह से काम भिन्न है, किसी तरह से सिमिलर है, परंतु मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि जो मूलभूत चीजें हैं पुलिसिंग की, वो चाहे यूएन पुलिसिंग हो चाहे भारत की पुलिसिंग हो, वो घूम फिर के यदि बात करें तो कॉमन होती है, और वो कॉमन सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग आपने बात करी। तो यूएन में भी पीस कीपिंग आप जब करते हो तो आपका ध्यान यही रहता है कि जिस देश में आप काम कर रहे हो वहां के सिटीजन्स को संतोष हो, उनमें विश्वास हो। और हमारे यहाँ भी जब हम काम कर रहे हैं तो हम में से बहुत से लोगों का ये प्रयास रहता है कि सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग हो, ये प्रयास हो कि एक विश्वास हम आम आदमी का अर्जित कर सके। और आपकी अनुमति से यहाँ मैं एक चौपाई मुझे याद आती है, और उस चौपाई का जो तात्पर्य है उसका मैंने अपने जीवन में हमेशा पालन किया है, और मेरा ये मानना है कि उस चौपाई से जो सीख मिलती है हमें, उन पंक्तियों से जो निकल के आता है सामने, यदि प्रत्येक पुलिसकर्मी ये ठान ले कि उसको अपना कार्य उसी अनुसार करना है जैसा कि चौपाई में वर्णन है, तो मैं समझता हूं कि ये जो विश्वास अर्जित करने की बात हम कर रहे हैं आम जनमानस की, समाज की, ताकि सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग सफल हो सके, वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगी। और वो चौपाई कुछ इस प्रकार से है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल सकल विष्णु जग त्राता, तपबल सकल विष्णु जग त्राता, तपबल शेष धरहि मही भारा, तपबल शेष धरहि मही भारा, तपबल शिव करहि संघारा, तपबल शिव करहि संघारा। और चौपाई का मतलब ये है कि तपस्या, मेहनत, कर्मठता और लगन, इन क्वालिटीज के आधार पर ही भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। तपस्या, लगन, मेहनत और कर्मठता, इनके बल पर ही भगवान शेषनाग में इस धरती का भार उठाने की शक्ति आती है। तपस्या, मेहनत, लगन और कर्मठता, इनके आधार पर ही शंकर भगवान में संहार करने की शक्ति आती है। तो जब भगवान को भी तपस्या, लगन और मेहनत की आवश्यकता है, तो हम तो केवल पुलिसकर्मी हैं। यदि हम ये करने लग जाएंगे अपने जीवन में, अपने कार्य में, तो निश्चित तौर पे जिस समाज के लिए, जिस देश के लिए, जिस जनमानस के लिए हम काम कर रहे हैं, उनका विश्वास अर्जित करने में हम सफल रहेंगे। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना हमें समय दिया, इतना हम सब आपसे जान पाए हैं। बहुत सारे सवाल जो हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जनता और पुलिस के बीच समन्वय कहाँ हो सकता है? ऐसे कौन से एवेन्यूज हैं जिसका उपयोग करते हुए जनता पुलिस की मदद कर सके, या फिर एक कोई ऑफिशियल हम मैकेनिज्म अगर बना सके? मान लीजिए जैसे ट्रैफिक हो गया, तो ट्रैफिक वार्डन्स हम देखते हैं। इंदौर का एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, जहाँ पे शुभी जैन नाम की एक लड़की थी जो पुणे में MBA कर रही थी, और उन्होंने जब आकर वहाँ के व्यस्ततम चौराहे पे ट्रैफिक संभाला,
तो काफी लोगों ने रुचि भी ली देखने में कि एक यंग लड़की क्या कर रही है यहाँ पर आकर। समझाया जब उसने कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, तो एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला। तो क्या इसी तरह की चीजें हम भोपाल में या मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में भी कर सकते हैं? क्या सजेशन है आपका कि नागरिकों और पुलिस के बीच में समन्वय हम और किस तरीके से स्थापित कर सकते हैं? Certainly, अर्पित, ये जो सवाल है, एक्चुअली दिस इज अ की टू एंश्योरिंग द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जो हम बात करते हैं। और ट्रैफिक एक ऐसा पहलू है जो सभी के साथ में प्रत्येक दिन जुड़ा रहता है। बाहर सब लोग जाते हैं और उनका वास्ता सबसे पड़ता है, जिसमें सबसे पहले जो है वो ट्रैफिक पुलिस का ही अधिकारी कर्मचारी होता है। तो ट्रैफिक वार्डन तो सर्टेनली एक तरीका है। देखिए, प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि कुछ अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं जो कि अपने जिले को या अपनी रेंज को चलाने के लिए नए नए नवाचार करते हैं और उन नवाचारों के माध्यम से जनता का समन्वय हासिल करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन भी हासिल करते हैं पुलिसिंग में। ट्रैफिक वो अच्छा चलने वाला ट्रैफिक वार्डन सिस्टम एक उसका उदाहरण है। परंतु प्रॉब्लम या अनफॉर्चुनेट स्थिति ये है कि ये चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाती। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इंदौर में या एक्स सिटी में बहुत अच्छा कोई सिस्टम चल रहा है तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि उसे स्टैंडर्डाइज करके और पूरे प्रदेश में लागू किया जा सके। मध्य प्रदेश में ये एक शुरुआत हुई थी कुछ वर्षों पूर्व, जब एक समिति बनी थी और वो समिति नवाचारों का अध्ययन करती थी कि किस जिले में किस एसपी के द्वारा अच्छा कोई कार्य किया जा रहा है। परंतु वो समिति बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाई और उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो पाया, जिस कारण से अच्छी चीजों का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाया। तो सबसे पहले जरूरी है, यदि जनता और पुलिस के बीच में हमें सहयोग बढ़ाना है, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन यदि हम शुरू कर सकें तो वो एक माध्यम होगा। दूसरा, ट्रैफिक वार्डन की तरह ही कई ऐसे शहर हैं जहां रक्षा समितियों का गठन पुलिस ने किया है और कुछ वर्षों पहले तक के ये बहुत ही अच्छा कार्य करती थी। और सिस्टम ये बेसिकली था कि हर मोहल्ले में रक्षा समिति का गठन किया जाता था, गांव में अलग किया जाता था, और हर मोहल्ले में जो रक्षा समिति होती थी उसको जो महत्वपूर्ण बैठक थाना प्रभारी या एसडीओपी या सीएसपी करते हैं अपने क्षेत्र में, उसमें उसके सदस्यों को बुलाया जाता था, उनकी राय ली जाती थी और बल कम पड़ने पे उनके सदस्यों को गश्त में, लॉ एंड ऑर्डर में, अन्य जगह भी उनका उपयोग किया जाता था। तो इससे एक अच्छा समन्वय उस मोहल्ले के लोगों के बीच में और पुलिस के उस थाने के लोगों के बीच में बनता था। ये इसको भी यदि हम पुनर्जीवित कर सकें तो ये एक अच्छा तरीका होगा। एक और सुझाव मेरा है, विचार मेरा है, थोड़ा सा रेडिकल जरूर है, लेकिन राज्य स्तर पे अभी शुरुआत नहीं हो पाई, केंद्र स्तर पे कुछ शुरुआत हुई है, पुलिस में नहीं किसी अन्य विभाग में, लेकिन वो सुझाव पुलिस में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। एडिकेट ट्रेनिंग की होगी जरूरत, लेकिन बाद में हो सकता है कि लैटरल एंट्री से मेरा मतलब है कि यदि अर्पित जी ने अपने पढ़ाई के दौरान और उसके बाद के कार्यकाल में सुरक्षा से या पुलिस से या देश की सेवा से संबंधित कुछ कार्य किया है और वो पुलिस में आने को इच्छुक हैं, तो उनको किसी भी आयु में किसी भी स्तर पर एक लैटरल एंट्री के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसा कि अन्य देशों में होता है। अमेरिका में, ब्रिटेन में, बाकी कई जगह ये व्यवस्था है कि बहुत से विभागों में पुलिस इंक्लूडिंग लैटरल एंट्रीज होती हैं प्राइवेट सेक्टर से। हिंदुस्तान में भी एक शुरुआत की गई है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे केंद्र सरकार में, जहां 9 जॉइंट सेक्रेटरीज प्राइवेट सेक्टर से लिए जाकर विभिन्न मंत्रालयों में लिए गए। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम प्राइवेट सेक्टर से अच्छे, बढ़िया, देश को समर्पित लोग लें, उनको उचित प्रशिक्षण पुलिस के लिए जो जरूरी है वो दें और उनकी लैटरल एंट्री करें, तो फ्रेश आइडियाज आएंगे, विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी, समन्वय अच्छा होगा और अन्य बहुत से बेनिफिट हो सकते हैं। सर, एक और सवाल जो काफी ज्यादा उठता है खासतौर पे विद्यार्थियों के माध्यम से, वो सवाल यह है कि
जैसे बाकी अन्य कुछ विभागों में हम विद्यार्थियों को इंटर्नशिप का मौका देते हैं, क्या पुलिस विभाग में भी विद्यार्थियों को इंटर्नशिप का मौका दिया जा सकता है? खास तौर पे जैसे डिजास्टर रिस्पॉन्स की बात हो गई, या फिर आपके जो शहरों की पुलिस होती है, उनके पास वर्कलोड इतना होता है कि कभी कभी वो नागरिकों से मिल पाने में, उनसे बातचीत कर पाने का भी समय नहीं निकाल पाते। तो क्या ये जो वॉलंटियर्स के रूप में आपके पास बच्चे आएंगे इंटर्नशिप के बहाने, क्या ये एक मीडियम बन सकते हैं जनता और पुलिस के बीच जो संवाद है उसका? मोस्ट सर्टनली ये चीज बिल्कुल हो सकती है। और कुछ हमने शुरुआत भी करी थी डिजास्टर मैनेजमेंट की, आपने बात करी। जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट में थे तो मैंने शुरुआत करी थी कि कुछ इस तरह का, एकदम इंटर्नशिप तो नहीं, परंतु कुछ हम सहयोग ले पाए, हम पार्टिसिपेशन ले पाए युवाओं का, उसको आगे बढ़ाया होता है उसके माध्यम से। और ये निश्चित तौर पे किया है, इसका बेनिफिट भी मिलेगा समाज को भी और विभाग को भी, यदि हम इंटर्नशिप्स भी ऑफर करने लगे। और जहां तक मेरी जानकारी में कुछ राज्यों में, कुछ शहरों की कमिश्नरेट पुलिस ने ये किया है, तो ये हमारे यहाँ भी शुरू किया जा सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी अप्रोच करके, और सामूहिक स्तर से पुलिस मुख्यालय पर डीजी साहब के को भी अप्रोच करके, और इस प्रकार की एक शुरुआत निश्चित तौर पे की जा सकती है। सर एक सवाल, बिकॉज आपकी जो प्रोफाइल हम लोगों ने शेयर करी थी उसको लेकर काफी युवा लोग एक्साइटेड हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपका जो अनुभव था यूएन पीस कीपिंग का हो गया, या फिर दुबई में टी बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में हो गया, वो उस अनुभव के आधार पे आप भारत का भविष्य किस तरीके से देखते हैं? जी जी तो इस सवाल को मैं कुछ इस प्रकार से उत्तर देना चाहूंगा कि जो भगवान की कृपा रही है, बहुत मौके मिले मुझे अलग अलग देशों में काम करने के और अलग अलग महाद्वीपों में काम करने के। उसके आधार पे मैंने जो पाया है, तो जो 2-3 चीजें यदि मैं उसको लिस्ट करूं, तो सबसे आज से 10, 12, 15, 12 साल पहले मैं जाना चाहूंगा, और बल्कि और ज्यादा, 12 नहीं, मैं करीब करीब 20 साल पहले सबसे पहले जाऊंगा, और फिर 12 साल पहले की बात बताऊं। तो 20 साल पहले जब मैं यूएन में था, तो उस समय हमारी जो छवि थी एक भारत की बाहर, वो बहुत ज्यादा विकसित तो छोड़िए, परंतु विकासशील देशों की श्रेणी की भी छवि बहुत ज्यादा नहीं थी 1997-98 में। और उसी पीरियड में आपको याद होगा कि परमाणु विस्फोट भारत ने सबसे पहले किए थे 5 एक साथ। और जब वो परमाणु विस्फोट हुए तो वहाँ हम बोस्निया में थे उस समय, और वहाँ अन्य देशों के भी पुलिस अधिकारी साथ में थे। उनमें से किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि भारत के पास में ये तकनीकी और कुशलता है इस प्रकार के विस्फोट करने की। तो एक अजीब सी दृष्टि से उस समय भारत के और भारत के लोगों को और भारत को देखा जाता। अब आप आ जाए 2007-2008 में, तब तक काफी अंतर हो चुका था, और जैसे जैसे कहा जाता है कि a lot of water had flown under the bridge। तो 2007 में जापान में मुझे ये फीलिंग आई, जब वहाँ की मीटिंग वगैरह हुई और लोगों से इंटरेक्शन हुआ ऑफिशियल से, और उस समय तक जापानी लोग ये देखने लग गए थे कि भारत एक उभरता हुआ सितारा है, और अर्थव्यवस्था में भी और भौगोलिक दृष्टि से, जियोपॉलिटिक्स दृष्टि से, अन्य क्षेत्रों में भी। जो आपका सवाल है कि हम अपने भविष्य को, भारत के भविष्य को मैं कहाँ देखता हूँ आगे चल के, तो इसका जो यदि बिल्कुल ही सटीक उत्तर, जो मैं इस पे इन चीजों पे बहुत बहुत चिंतन भी करता रहता हूँ, इसका उत्तर मैं ये समझता हूँ कि ये रहे, उचित उत्तर ये रहेगा मेरे मान से, कि ये निर्भर करता है कि हमारा जो युवा है आजकल, वो किस दिशा में जाता है। देखिए, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, जो विदेशी भी मानते हैं, हम स्वयं भी बोलते हैं, कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है हमारी डेमोग्राफी। मतलब कि ये हमारा देश जो है वो, उसकी अधिसंख्य जनसंख्या युवा है, और ये डेमोग्राफी हमारी बहुत बड़ी ताकत है।
निश्चित तौर पे। परंतु ये युवा अपने समय को, अपने इस अमूल्य समय को, अपनी विचारधारा को, अपने दृष्टिकोण को किस जगह ले जाता है, उस पर निर्भर करेगा कि भारत का भविष्य क्या है। मेरा ये मानना है, चूंकि मैं ऑप्टिमिस्ट हूं, तो मेरा ये मानना है कि हमारा अधिकांश युवा समय के प्रति, समय का मूल्य समझता है, समय के प्रति समर्पित है, उसका दृष्टिकोण व्यापक है, देश हित के बारे में वो अब सोचने लग गया है। तो और उसमें बाकी तो हुनर है ही, जिसके लिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये है, वो है, ये सारे हुनर तो पहले से ही, और जिनकी कमी थी वो भी आ रहे हैं। तो युवाओं में ये अब दिखने लग गया है। बहुत ही सुनहरा भविष्य हम इस देश को बना सकते हैं यदि हमारे युवा एकाग्रता से, तन्मयता से, लगन से, मेहनत से, कर्मठता से अपने इस समय का उपयोग सद्भाव से करें। बिल्कुल सर, आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आपने कहा कि आप एक बड़े ऑप्टिमिस्ट पर्सन हैं, और आपकी एक बात मुझे याद आती है, कुछ समय पहले आपने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें आपका बड़ा अच्छा कोट था, मैं दोबारा उसे कहना चाहूंगा। जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो भी ध्यान से सुने, शायद आपको भी अच्छा लगे। सर ने कहा था कि हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है, और जो व्यक्ति कभी अपने क्षेत्र से, जहां वो रहता है या काम करता है, उससे बाहर नहीं गया, उसने अपनी जीवन की पूरी किताब कभी पढ़ी नहीं है। तो मेरे ख्याल से सर की जो एक सीख थी कि हम जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे अपने आसपास की दुनिया को, जितना ज्यादा जानेंगे और जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, शायद हमारे अनुभव उतने ही बेहतर हो सकते हैं। सर, एक बार फिर पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। आपने हमारे लिए समय निकाला, इतना कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी, और ग्लोबल शेपर भोपाल की ओर से हम कहना चाहते हैं कि हम जल्दी आपसे मिलेंगे, जैसे ही ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारे नॉर्म्स रिलैक्स होते हैं। आपसे मिलकर हम भविष्य में पुलिसिंग के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से हम मध्य प्रदेश पुलिस को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, हम आपसे मार्गदर्शन भी लेंगे, और आपको अपना पूरा सहयोग का हम प्रण भी करते हैं। थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए। थैंक यू अर्पित। मेरी आपको और आपके सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू।